बच्चों, कल हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और उसमें एक्सरसाइज 7.9 के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज उसी में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज द 7th क्वेश्चन। यू हैव टू इंटीग्रेट 10x from 0 to pi by 4. So we have to first find the integration of 10x. The integration of 10x is log mod sec x. Then the limits are from 0 to pi by 4. So first we put the upper limit, then minus, put it lower limit in it. We will get log mod sec pi by 4 minus log mod sec 0. And sec pi by 4 is root 2 and sec 0 is 1, so it becomes log mod root 2 minus log mod 1. Since both are positive, so we can replace remove mod and we can write log root 2 minus log 1, and log 1 is 0, and this root 2 can be written as 2 to the power half, so it becomes half log 2 log m raised n equal to n log m होता है, तो उस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करते हुए इसको हाफ लॉग 2 लिख दिया है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमेशा एक वैल्यू होती है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट इज इंटीग्रेट cosec x from pi by 6 to pi by 4. Now integration of cosec x is log mod cosec x minus cot x. Then put the upper limit first, then minus, put lower limit in it. Then you will get log cosec pi by 4 minus cot pi by 4 minus log cosec pi by 6 minus cot pi by 6. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी, तो हमारे को मिलेगा log root 2 minus 1 minus log mod 2 minus root 3. दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो we can remove the mod, and then after this we apply log m minus log n equal to log m divided by n, so we will get log root 2 minus 1 divided by 2 minus root 3. Next is integration of dx upon x square minus 1 from 2 to 3. Now 1 upon x square minus 1 को हम लिख सकते हैं x square minus 1 square, और इसके बाद x square minus a square, 1 upon x square minus a square की इंटीग्रेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो होता है हमारे पास x 1/2a log mod x minus a अपॉन x प्लस a. सो a की प्लेस पर आपके पास 1 है, सो इट बिकम्स 1/2 log mod x minus 1 अपॉन x प्लस 1, and the limits are from 2 to 3. So first we put 3 here, then minus, and then we put 2 here, then it becomes half log mod half minus half log mod 1/3. Again half can be taken common, and we can apply log m minus log n equal to log m divided by log m divided by n, so it becomes half log 3/2. Next is cos square x integrated from 0 to pi by 2. Now cos square को हम cos 2x वाली आइडेंटिटी जो 2 cos square x minus 1 होती है उससे रिप्लेस करेंगे, तो 1 प्लस cos 2x by 2 हो जाएगा, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to pi by 2. टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो हाफ
and cos half can be taken common, you can separate then 1 plus cos 2x, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x और डिवाइडेड बाय 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2. देन पुट द लिमिट्स, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, सो यू विल गेट पाई बाय 2 प्लस हाफ साइन पाई हो जाएगा, ये 2 इंटू पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, माइनस 0 प्लस हाफ साइन 0. साइन 0 0 होता है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई और साइन पाई भी 0 होता है, सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली पाई बाय 2 हेयर एंड हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा पाई बाय 4. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू प्यारे बच्चों. कल हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और उसमें एक्सरसाइज 7.9 के कुछ क्वेश्चंस करे थे. आज उसी में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. दिस इज द 7th क्वेश्चन. यू हैव टू इंटीग्रेट 10x from 0 to pi by 4. So we have to first find the integration of 10x. The integration of 10x is log mod sec x. Then the limits are from 0 to pi by 4. So first we put the upper limit, then minus, put it lower limit in it. We will get log mod sec pi by 4 minus log mod sec 0, and sec pi by 4 is root 2 and sec 0 is 1, so it becomes log mod root 2 minus log mod 1. Since both are positive, so we can replace remove mod and we can write log root 2 minus log 1, and log 1 is 0 and this root 2 can be written as 2 to the power half, so it becomes half log 2 log m raised n equal to n log m होता है, तो उस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करते हुए इसको हाफ लॉग 2 लिख दिया है. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमेशा एक वैल्यू होती है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं लगाया जाता. नेक्स्ट इज इंटीग्रेट cosec x फ्रॉम पाई बाय 6 to पाई बाय 4. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cosec x is log mod cosec x minus cot x. Then put the upper limit first, then minus, put lower limit in it, then you will get log cosec pi by 4 minus cot pi by 4 minus log cosec pi by 6 minus cot pi by 6. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी, तो हमारे को मिलेगा log root 2 minus 1 minus log mod 2 minus root 3. दोनों ही पॉजिटिव हैं तो वी कैन रिमूव द mod, and then after this we apply log m minus log n equal to log m divided by n, so we will get log root 2 minus 1 divided by 2 minus root 3. Next is integration of dx upon x square minus 1 from 2 to 3. Now 1 upon x square minus 1 को हम लिख सकते हैं x square minus 1 square, और इसके बाद x square minus a square, 1 upon x square minus a square की इंटीग्रेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. वो होता है हमारे पास x 1/2a log mod x minus a अपॉन x प्लस a. सो a की प्लेस पर आपके पास 1 है, सो इट बिकम्स 1/2 log mod x minus 1 अपॉन x प्लस 1, and the limits are from 2 to 3. So first we put 3 here, then minus, and then we put 2 here,
then it becomes half log mod half minus half log mod 1 by 3. Again half can be taken common and we can apply log m minus log n equal to log m divided by log m divided by n. So it becomes half log 3 by 2. Next is cos square x, integrated from 0 to pi by 2. Now cos square को हम cos 2x वाली आइडेंटिटी जो 2 cos square x minus 1 होती है उससे रिप्लेस करेंगे तो 1 plus cos 2x by 2 हो जाएगा एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to pi by 2. टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो हाफ एंड cos half can be taken common, you can separate then 1 plus cos 2x. तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x और डिवाइडेड बाय 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2. देन पुट द लिमिट्स, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट. सो यू विल गेट पाई बाय 2 प्लस हाफ साइन पाई हो जाएगा, ये 2 इंटू पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, माइनस 0 प्लस हाफ साइन 0. साइन 0 0 होता है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई और साइन पाई भी 0 होता है. सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली पाई बाय 2 हेयर एंड हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा पाई बाय 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 लिमिट्स 0 to 1. यहाँ हम टर्म्स को सेपरेट कर देंगे तो हमारे को मिलेगा 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1. फर्स्ट को इवेलुएट करने के लिए हम 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन से जब करेंगे तो ये 10x मिलेगा. सो वी विल मल्टीप्लाई numerator and denominator by 5, so we will get 1 by 5 integration 0 to 1 10x upon 5x square. सेकेंड वाले में 3 कॉमन लिया और 5x को लिख सकते हैं हम रूट 5x होल स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर. तो यहाँ पर अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म आ गई है सेकेंड इंटीग्रेशन में. और फर्स्ट वाला सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा इफ़ यू पुट दिस एस टी, तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में ये डी टी बन रहा है तो डी टी बाई टी इज लॉग मॉड टी, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मॉड 5x स्क्वायर प्लस 1. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1. सेकेंड वाले में इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 बाय ए, टेन इनवर्स एक्स बाय ए, तो इसलिए ये 1 बाय 1 हो गया. टेन इनवर्स एक्स की जगह आपके पास रूट 5x है डिवाइडेड बाय 1, और क्योंकि यहाँ सिंपली x नहीं है ये रूट 5x है तो रूट 5x का डिफरेंशिएशन होगा रूट 5, उससे डिवाइड करेंगे हम. देन पुट द लिमिट्स, तो जब 1 रखेंगे तो ये 6 बन जाएगा और 0 रखने पे ये 1 बन जाएगा. सो इट बिकम्स log 6 माइनस log 1. यहाँ 3 बाई रूट 5 है और जब 1 रखेंगे रूट 5 होगा और जब 0 रखेंगे 0 आता है. टेन इनवर्स 0 इज 0 एंड log 1 इज ऑल्सो 0. So we get 1 by 5 log 6 plus 3 by root 5 10 inverse root 5. Thank you.